योर टर्म बुक। मैं आज 4 लेसन से शुरू कर रही हूँ, इसलिए आप अपनी टर्म बुक निकालिए। चैप्टर 4 काइंडनेस। काइंडनेस चैप्टर का क्या नाम है? काइंडनेस। सो राइट सम हार्ड वर्ड्स। हार्ड वर्ड्स, इसलिए आप अपने 1 नंबर बुक निकालिए और मेरे साथ हार्ड वर्ड्स लिखिए। KIND काइंडनेस। काइंडनेस। संडे SUNDAY संडे। सलीम SALIM सलीम। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में ही लिखना है। वांटेड WANTED वांटेड। Now 5 number play PLAY play. Now 6 number MOTHER mother. Now 7 number asked ASKED asked. Now 8 number finish FINISHED finished. Sorry, finish. Finish. Now 9 number homework HOMEWORK homework. काइंडनेस 1 नंबर क्या है? काइंडनेस KINDNESS काइंडनेस। KINDNESS काइंडनेस। SUNDAY संडे। SUNDAY संडे। SALIM सलीम। SALIM सलीम। WANTED wanted। WANTED wanted। PLAY play। PLAY play। MOTHER mother। MOTHER mother। ASKED asked। ASKED asked। FINISH finish। FINISH finish। HOMEWORK homework। HOMEWORK homework. Now 10th number sum SUM sum। outside 11th number outside। Now 12th number turnip TURNE turnip। 13th number completed COMPLETED completed। Now 14th number unhappy UNHAPPY unhappy। Now 15th number endure INDOOR endure
game. Indoor games. GAMES, indoor games. Now 16 number, soon, SOON, soon. Now 17 number, thunder, THUNDER, thunder. Now 18 number, raining, RAINING, raining. Now 19 number, heavily, HEAVILY, heavily. So complete your book. SUM, sum. OUTSIDE, outside. OUTSIDE, outside. TURNED, turned. TURNED, turned. COMPLETED, completed. COMPLETED, completed. UNHAPPY, unhappy. UNHAPPY, unhappy. INDOOR, indoor. GAMES, games. INDOOR, indoor. GAMES, games. SOON, soon. Soon. THUNDER, thunder. THUNDER, thunder. RAINING, raining. RAINING, raining. HEAVILY, heavily. HEAVILY, heavily. Now 20 number. Now 20 number, heart, HEARD, heart. 21 number, REM, remembered. ERED, remembered. Now 22 number, sparrow, SPARROWS, sparrows. Now 23 number, getting, GETTING, getting. Now 24 number, setting, SHAKING, setting. Now 25 number, balcony, BALCONY, balcony. 26 number, reach, REACH, reach. And 7 number, HUGEU. And 8 number, stop, STOPPED, stop. And 29 number, safe, SAFE, safe. So complete it. HEARD, heard. HEARD, heard. REMEMBERED, remembered. REMEMBERED, remembered.
SPARROWS sparrows, SPARRROWS sparrows, GETTING getting, GETTING getting, SHAKING setting, SHAKING setting, BALCONY balcony, BALCONY balcony, REACH rich, REACH rich, HUGE hug, HUGE hug, STOPPED stop, STOPPED stop, SAFE safe, SAFE safe. So now hard words हुआ कंप्लीट हुआ। इसको आपको सारे हार्ड वर्ड्स आपको 1 नंबर बुक में चैप्टर 4 कर लिए, चैप्टर का नाम लिखना है, फिर आपको ये हार्ड वर्ड उसमें कंप्लीट करना है। सो लेट स्टार्ट आवर चैप्टर। It was Sunday. It was Sunday। यानी आज कौन सा दिन है? आज संडे है, यानी संडे मीन्स रविवार। सलीम wanted to go out and play। और सलीम कहाँ जाना चाहता था? सलीम wanted to go out and play। सलीम बाहर खेलने जाना चाहता था, क्योंकि क्या था? आज संडे था। But his mother had asked him to finish his homework first। लेकिन उसकी मम्मी ने क्या कहा? उसकी माँ ने कहा सबसे पहले तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो, यानी लेसन पूरा करो। He had to finish his homework and he had to finish maths and English homework। तो उसने कौन सा होमवर्क कंप्लीट किया? उसने मैथ और इंग्लिश का होमवर्क लेसन पूरा किया। One time repeat this। It was Sunday। It was Sunday। सलीम wanted to go out and play। यानी सलीम बाहर जाना चाहता था खेलने के लिए। But his mother had asked him to finish his homework first। लेकिन उसकी माँ ने उसे क्या कहा कि पहले आपको बाहर खेलने जाने से पहले आप अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करो। He had to finish maths and English homework। तो उसने क्या किया? उसने अपना मैथ और इंग्लिश का होमवर्क पूरा किया। When Salim was doing the last sum in his book, the sky outside turned all dark। यानी जब सलीम अपने मैथ की बुक में लास्ट सम कर रहा था तब क्या हुआ? द स्काई आउटसाइड टर्नेड ऑल डार्क, यानी आकाश में चारों तरफ अंधेरे हो गए। सून इट स्टार्टेड रेन, और जल्दी ही बहुत जल्दी क्या होने लगा? स्टार्टेड रेन, यानी बारिश होने लगी। सलीम वांटेड द रेन टू स्टॉप, और सलीम क्या चाहता था? वो चाहता था कि बारिश होना बंद हो जाए। He could not go out and play, क्योंकि वो बारिश की वजह से बाहर खेलने नहीं जा पा रहा था। He had completed his homework, और उसका जो था होमवर्क यानी जो स्कूल का वर्क था वो भी पूरा हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। He was unhappy, इसमें वो बहुत ही सैड हो गया, यानी बहुत ही दुखी, अनहैप्पी हो गया, बहुत ही दुखी हो गया। His mother said, उसकी माँ ने कहा, Don't be unhappy, मतलब उदास मत हो बेटा। Play some indoor games, तुम घर के अंदर ही कोई इंडोर गेम खेल सकते हो। But Salim wanted to go out and play with his friend, लेकिन सलीम क्या करना चाहता था? वो घर के बाहर जाना चाहता था और अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। When Salim was doing the last sum in his book, जब सलीम अपनी बुक में लास्ट सम कर रहा था, the sky outside turned all dark, तो आकाश में चारों तरफ क्या हो गया था? डार्क, यानी अंधेरा हो गया था। Soon it started rain, और बहुत ही जल्द बारिश होने लगी। सलीम wanted the rain to stop, और सलीम क्या चाहता था? सलीम चाहता था कि बारिश होना बंद हो जाए। He could not go out and play, क्योंकि बारिश की वजह से क्या हो रहा था? वो
बाहर खेलने नहीं जा पा रहा था। He had completed his homework और वो क्या उसका होमवर्क भी कंप्लीट हो चुका था। He was unhappy so इसलिए वो बहुत ही दुखी था। His mother said तब उसकी माँ ने क्या कहा, Don't be unhappy यानी उदास मत हो। Please come indoor game तुम घर में बैठकर भी कुछ गेम खेल सकते हो। But Salim wanted to go out and play with his friends लेकिन सलीम घर के बाहर जाना चाहता था और अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था। Soon there was rain and thunder and it started raining heavily और बहुत जल्दी ही वहाँ पर क्या बहुत तेज बारिश होने लगी और थंडर बिजलियां चमकने लगी और जोर से बरसात होने लगी। Salim heard cries of birds from the tree near his house तभी सलीम को क्या सुनाई दिया, सलीम heard cries of birds यानी सलीम को कुछ पक्षियों के रोने का आवाज सुनाई दिया। From the tree near his house जो कि उसके घर के सामने एक ट्री था, उस ट्री में एक नेस्ट उसमें से कुछ पक्षियों के रोने का आवाज सुनाई दिया। He remembered baby sparrow in the nest on the tree तभी उसे अचानक याद आया कि जो बेबी स्पैरो है उस ट्री में कि जो नेस्ट है उसके अंदर है। They were alone in the nest और उस नेस्ट में वे लोग अलग है क्योंकि उसकी माँ उनके साथ नहीं है। And they were getting wet और वो लोग क्या हुए, वे लोग बारिश की बूंदों से पूरे भीग गए थे। वो जो बेबी स्पैरो यानी पक्षी यानी चकली यानी चिड़ियों के जो बच्चे थे छोटे छोटे वो बारिश की वजह से पूरे भीग चुके थे, इसलिए जोर जोर क्राई कर रहे थे यानी रो रहे थे। Soon there was मैं वन टाइम रिपीट फिर से कर रही हूँ। Soon there was rain and thunder और अचानक ही बहुत बारिश होने लगी और जोर से आंधी मतलब बिजली की गरजने की आवाज आने लगी। एंड स्टार्टेड raining heavily और जोर जोर बारिश होने लगी। Salim heard cries of birds from the tree near his house तभी सलीम को उसके घर के सामने जो ट्री थी उसमें नेस्ट में कुछ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे थे, उनके रोने की आवाज सुनाई दी। He remembered baby sparrow in the nest on the tree तभी उसे अचानक याद आया कि उस ट्री में जो नेस्ट है उसमें बेबी स्पैरो यानी पक्षी के छोटे छोटे बच्चे हैं। They were alone in the nest और वे नेस्ट में क्या है अकेले हैं यानी उनकी माँ उनके साथ नहीं है। एंड दे वर गेटिंग वेट और वे बारिश के पानी से बहुत भीग चुके हैं। द ट्री वाज शेकिंग इन द विंड एंड द बेबी स्पैरो वर अफ्रेड और जो आंधी तूफान आ रहा था जो थंडर हो रहे थे उसके वजह से ट्री जो थे बहुत ही शेकिंग मतलब गिर रहे थे, बहुत जोर जोर गिर रहे थे और जो हवा बहती है तो पेड़ों के पत्ते और डालियां गिरते हैं ना जोर जोर, तो उससे बेबी स्पैरो जो थे वो बहुत ही भयभीत हो जा रहे थे, बहुत डर रहे थे। फ्रॉम हिज बालकनी सलीम कुड रीच द नेस्ट और उसके बाद सलीम कहाँ पहुंचा, वो नेस्ट के करीब पहुंचा। He took a towel and hung it over the nest और उसने क्या किया, उसने एक टॉवेल यानी रुमाल उसको लिया और नेस्ट के ऊपर डाल दिया। The baby sparrow would not get wet now अब वो जो बच्चे थे वो अब भीग नहीं रहे हैं। They were safe अब वे सुरक्षित हैं। सलीम was happy सलीम बहुत खुश हुआ। He watched the baby sparrow till it stopped rain और वो पूरी तरह से बेबी स्पैरो की ध्यान रखने लगा जब तक बारिश बंद नहीं हुई। The tree was shaking in the wind and the baby sparrow were afraid यानी जब बिजलियों के कड़कने से और पवन जो बह रहे थे उसकी वजह से पेड़ जो था उसकी पत्तियां डालियां खूब जोर जोर गिर रहे थे, जिसकी वजह से वो पक्षियों के जो बच्चे थे वो बहुत ही भयभीत यानी डर रहे थे। सलीम कुड रीच द नेस्ट और सलीम कहाँ गया, सलीम उस ट्री के नजदीक गया, नेस्ट के पास गया। He took a towel and hung it over the nest और उसने एक टॉवेल लेकर गया यानी रुमाल लेकर गया और उस नेस्ट के ऊपर डाल दिया। The baby sparrow could not get wet now अब बेबी स्पैरो अब सुरक्षित है यानी अब वे बारिश से भीग नहीं रहे हैं। They were safe अब वे बहुत सुरक्षित हैं। सलीम was very happy इस वजह से सलीम क्या हुआ,
बहुत ही खुश हुआ। He watched the baby sparrow till it stopped rain. और वो तब तक उन बेबी स्पैरो का ध्यान रखा जब तक कि बारिश बंद नहीं हुई, यानी जब तक बारिश थी तब तक वो उसी नेस्ट के पास उनका ख्याल रखता गया। So now one time repeat this calculation. So you read with me. It was Sunday. Salim wanted to go out and play, but his mother had asked him to finish his homework first. He had to finish math and English homework. When Salim was doing the last sum in his book, the sky outside turned all dark. Soon it started rain. Salim wanted the rain to stop. He could not go out and play. He had completed his work, his homework. He was unhappy. His mother said, "Don't be unhappy. Play some indoor games." But Salim wanted to go out and play with his friend. Soon there was rain and thunder, and it started raining heavily. Salim heard cries of birds from the tree near his house. He remembered baby sparrow in the nest on the tree. They were alone in the nest and they were getting wet. The tree was shaking in the wind and the baby sparrow were afraid from his balcony. Salim could reach the nest. He took a towel and hung it over the nest. The baby sparrow would not get wet now. They were safe. Salim was happy. He watched the baby sparrow till it stopped. Now our exercise chapter is complete. So जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो टुडेज होमवर्क इज, आज हमारा एग्री चैप्टर कंप्लीट हुआ. इसलिए इस चैप्टर से क्या है, हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए. इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपना दिल दया के रूप में रखना चाहिए. दूसरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या बर्ड्स हो या एनिमल्स हो. हमें दूसरों के प्रति हमेशा दया की भाव रखना चाहिए. सो टुडेज होमवर्क इज, learn and write the hard words chapter 4 in 0 number book one time and read the lesson two times. Read the lesson 2 times. मैंने जो आपको लेसन समझाया है उसको आपको 2 टाइम रीड करना है और जो हार्ड वर्क से कराया है उसको आपको 1 टाइम 0 नंबर बुक में लिखना है. थैंक यू.